اور کچھ نئے نکات جو پہلے لوگوں کے ذہن میں نہ ہوں وہ بھی سمجھے جائیں، توحید کے بارے میں اور رسالت کے مسئلہ میں، تقدیر کے بارے میں. کیونکہ جہالت جو ہے نا، جہالت یہ صرف علم کی دشمن نہیں ہے، جہالت ایمان کی دشمن ہے. جہاں پہ جہالت ہوتی ہے وہاں پہ ایمان نہیں ہوتا، اور ایمان وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ علم الہی آ جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بنیادی عقیدے کی چیزیں ہیں. اور میں اکثر حضرات تفنن کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو لوگ چورن بیچتے ہیں تو عقیدے کا، کہ جو قوال ہے نا، قوال، وہ قوال بھی آپ کو قوالی میں کہتے ہیں. عقیدہ سمجھانے لگا دعان میں اہل سنت کا. تو میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہم نے قوالوں سے، بول لو تے صحیح، ہاں قوالوں سے عقیدہ نہیں لینا ہم نے. آپ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں. جتنی دیر آپ جاگیں گے اتنی دیر میں بولوں گا، بس بات ختم ہو جائے گی اس کے بعد. ٹھیک ہے نا جی؟ تو عقیدہ اہل سنت نہ قوال نے ہمیں دینا ہے اور نہ اس نعت خان نے دینا ہے جو ماڈل بن کے آتا ہے، فیشن ڈیزائنر سے کپڑے ڈیزائن کرواتا ہے اور وہ مارکیٹنگ کرتا ہے برانڈز کی. اور نعت پڑھنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور حمد و ثنا، ان کی توصیف و ثنا بیان کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ سے کم میں میرا آپ سے بکنگ نہیں ہوگی. وہ آ کے عقیدہ بتائے گا ہمیں، یا وہ خطیب جس نے درس نظامی کی کتاب ہی نہیں کوئی پڑھی، جس کو عربی کتاب پڑھنی نہیں آتی، وہ عقیدہ بتائے گا. جب سے ان جاہلوں نے لوگوں کی لیڈرشپ کا منصب لے لیا ہے تب سے جہالتیں پھیلنا شروع ہو گئی. دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے شرح المقاصد، اور یہ اہل سنت کے عقائد کی کتاب ہے. یہ نہ آج کسی نے لکھی، نہ پچھلی صدی، نہ اس سے پچھلی، نہ اس سے پچھلی. یہ پرانے امام جو ہیں، جب کوئی نہ یہ فرق تھا کہ یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ فرق ہی کوئی نہیں تھا، یہ اس زمانے کی کتاب ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے اس میں عقیدے کے باب میں جو باب ہے وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت التوحید عدم الشریک. توحید کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ توحید کی حقیقت ہے شریک کا نہ ہونا. ساجدار اودی الوہیت وچ کوئی نہیں. توحید کی حقیقت ہی یہ ہے. مثلا اگر کوئی آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کو میں مانتا ہوں، جس طرح مشرکین عرب تھے، وہ کہتے تھے اللہ ہے اور وہ خالق ہے، اللہ ہے وہ جسموں کو پیدا کرتا ہے، اللہ ہے ہمیں بھی بنانے والا ہے، سب کو بنانے والا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ بھی کچھ کام کرتے ہیں، یہ بھی کسے کام جوگے ہیں. اور بتوں کو بتان خالق نہ مندے، بتوں کو وہ خالق نہیں مانتے تھے، بلکہ بتوں کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے مقبول ہیں، یہ پاور رکھتے ہیں کائنات کا نظام چلانے کے اندر، کائنات کا نظام چلاتے ہیں. اور بارش یہ چاہتے ہیں تو برستی ہے، اولاد یہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، رزق جس کو چاہتے ہیں یہ دیتے ہیں. یہ مشرکین عرب تھے کہ جو کہتے تھے اللہ سب سے بڑا معبود ہے، لیکن کچھ پاور جو اللہ والی ہیں، کچھ طاقتیں جو اللہ والی ہیں، کچھ اختیارات اور قدرتیں جو اللہ والی ہیں وہ ان میں بھی ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا ایسا ماننا مجھے قبول نہیں ہے، بلکہ حقیقت التوحید عدم الشریک،
फरमाया हकीकत तौहीद ये है कि किसी भी किस्म के शरीक को न मानो। और यहां पे फिर फरमाया हजरत इमाम अल्लामा सादुद्दीन तफ्तानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हकीकत तौहीद क्या है? एतिकाद व अदम शरीक फिल उलूहियत। सबसे पहला ये एतिकाद कि माबूद होने में, इलाह होने में, जो कलमे में पढ़ते हैं ना ला इलाहा, ला इलाहा, इलाह होने में कोई उसका शरीक नहीं है। वह खवासिहा, और यहां पे बात आके जरा समझने की जरूरत होगी कि ना कोई इलाह होने में उसका शरीक है और ना इलाह होने की जो क्वालिटीज हैं, इलाह होने की जो सिफात हैं, इलाह होने के जो खासे हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो भी किसी और में नहीं पाई जा सकती। और ये बयान करते हुए फरमाते हैं कि वला निज़ा ले अहलिल इस्लाम, कहते हैं तमाम अहले इस्लाम ने इस बात पर इत्तेफाक किया है फी अन्न तदबीर अल आलम व खल्क़ल अजसामी व इस्तिहक़ाक़ अल इबादत। फरमाया कि तमाम जहान की तदबीर करना, दुनिया कायनात का निजाम चलाना, ये उलूहियत की सिफत है, ये माबूद की सिफत है, ये किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत है। और फरमाया कि ये जब अल्लाह का खासा है, जब इलाह का ये खासा है, तो फिर ये किसी और में पाई जा सकती ही नहीं। तो कायनात का निजाम चलाने वाला यानी मुदब्बिरुस समावाति वल अर्द, मुदब्बिरुल अमर, मैं युदब्बिरुल अमर हुवल्लाह। ये इस कायनात का जितना निजाम चल रहा है, ये चांद और सूरज का आना जाना है, ये मौसमों का तब्दील होना है, ये हवाओं का चलना है, ये बारिश का बरसना है, ये किसी को रिज्क में इजाफा होता है, किसी के रिज्क में कमी होती है, किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है, कोई बंदा बीमार होता है, किसी को शिफा मिल जाती है, किसी के पास बेटे हैं बेटियां नहीं है, किसी के पास बेटियां हैं बेटे नहीं है, किसी के पास न बेटे हैं न बेटियां हैं, किसी के पास औलाद होती है और वो मर जाती है, किसी के वालिदैन इस दुनिया से जा रहे हैं, किसी की औलाद इस दुनिया में कदम रख रही है। तो ये कायनात का जितना निजाम चल रहा है, ये खेतियां हैं, ये दरिया हैं, ये पहाड़ हैं, ये समंदर हैं, ये मखलूकात हैं हजारों, और इन सब का जो सर्कल, ये जितना जिंदगी का निजाम चल रहा है, ये जितना इस कायनात का निजाम चल रहा है, इस सारे निजाम को चलाने वाला वाहिद और यकता कौन है? अल्लाह। वाहिद और यकता एक अल्लाह निजाम को चलाने वाला है। बाकी अल्लाह के नौकर बड़े हैं, अल्लाह के नौकर बड़े हैं, उसके काम करने वाले करिंदे बहुत है। वो चाहे तो किसी काम पे जिब्रील अमीन को लगा दे, वो चाहे तो किसी काम पे जनाबे इसराफील को लगा दे, वो चाहे तो किसी काम पे जनाबे इजराइल को लगा दे, जनाबे मीकाइल को लगा दे। ये सारे फरिश्ते जो हैं ये उसके नौकर हैं, और एक इस कायनात का मालिक और मुदब्बिर समावात वल अर्द कौन है? अल्लाह। अब देखिए फिर यहां पे हजरत इमाम सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपने मुशरिकीन की अकायद बयान किए हैं कि मुशरिकीन किस किस तरह के अकीदे रखते हैं और किस किस किस्म के मुशरिक हैं। एक उनमें से मुशरिकों का वो टोला है जिनको सनविया कहते हैं। उनका अकीदा यह है कि कायनात में दो माबूद हैं, एक नूर है और एक जुल्मत अंधेरा है। फिर एक मजूसी है। ये जो ईरान है ना, यहां के जो नेटिव थे पुराने लोग, जब नबी अलैहिस्सलाम मबूस हुए या उसके बाद सहाबा इकराम ने जब ईरान पे हमला किया तो ईरान वाले मजूसी थे, और मजूसी भी दो माबूद मानते हैं। वो कहते हैं एक खालिक खैर है और एक खालिक शर है। ठीक है, एक यजदान है जो खैर का रब है, और एक अहरमन है जो बुराई का रब है। उन्होंने भी दो रब माने। फिर इसके अलावा एक ग्रोह था जो
फरिश्तों की पूजा करते थे। वअबदतुल कवाकिब, और फिर एक ग्रोह था जो सितारों की पूजा करते थे। तो वो कैसे पूजा करते थे? अब सितारों की पूजा कोई कैसे कर सकता है? ठीक है, मलाइका की पूजा कोई कैसे कर सकता है? तो उनका अकीदा क्या था? वो कहते थे फरिश्तों और सितारों के बारे में कि अन्नहुम इअतक़दू कौनुहा मुअस्सिरतन फी आलमिल अनासिर और मुदब्बिरतुन लिउमूरिन क़दीमतिन बिज़्ज़मान। वो ये कहते थे कि कदीम जमाने से जो उमूर इस कायनात के चल रहे हैं ना, ये सितारों के तासीर से चल रहे हैं, और ये फरिश्ते जो हैं उनके पास कुदरतें हैं, वो चला रहे हैं। तो जिन्होंने सितारों को साहिब कुदरत माना वो उसकी पूजा करते थे, और जिन्होंने फरिश्तों को साहिब कुदरत माना वो फरिश्तों की पूजा करते थे। फिर एक टोला है जो बुत पूजा करता है, जिस तरह ये इंडिया वाले हैं, और कदीम अरब में जो मुशरिक थे बुत की पूजा करने वाले, वो बुत की पूजा क्यों करते थे? अब इतना अक्लमंद तो हर इंसान है कि ये मिंबर है और ये लकड़ी है, ये बेजान है, ना खुद हरकत कर सकता है ना किसी को कुछ दे सकता है। तो कोई पागल तो नहीं है कि वो इस मिंबर के सामने आके इसको सजदा करने लग जाए। उसके पीछे कोई ना कोई दलील तो बनाएगा ना जी, कोई ना कोई हवाला बनाएगा, कोई ना कोई वो लॉजिक लेकर आएगा। कोई बंदा है वो जनाब इस कुर्सी की पूजा करने लग जाए, वो मोबाइल की पूजा करने लग जाए, कोई उसके पीछे लॉजिक होगी। तो ये जो मूर्तियां बनाई हुई हैं इनके पीछे क्या लॉजिक है? तो कहते हैं वो ये समझते हैं कि अन्नहु सुवरो अरवाहिन तुदब्बिरु अमरहुम। वो कहते हैं कि ये है असल में तस्वीरें, ये जो मूर्तियां हैं ये क्या है? सूरतें हैं, ये मुजस्समा है, सूरत है किन की? उन रूहों की जो रूहें हमारे काम इस कायनात के चलाती हैं। मुशरिक क्या समझते हैं? ये हिंदुओं से भी अगर आपका मुकालमा हो, बात की समझ आ रही है ना? हिंदुओं नाल भी अगर गल हो जाए ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ मौके ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ पूजा करदे हो बुतां दी ਇਹ ਕੀ है, ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ कि राम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ हिस्ट्री ਦੇ अंदर एक करैक्टर सी, तारीख ਦੇ अंदर राम एक बादशाह ਦਾ नाम ਸੀ, ਉਹਦੀ रूह ਦੀ ਇਹ पूजा करदे ने, ਉਹਦੀ सूरत ਦੇ ਉੱਤੇ बुत बनाया है। इस तरह रावण ये भी एक इस तरह का इंसान सी, ठीक है। ये सारे इंसान हो गुजरे ने जिन्हों की मूर्तियां इन्हें बनाई। तो कहते हैं कि उनकी रूहें जो हैं, वो राम की जो रूह है, वो काली देवी जो है उसकी जो रूह है, इनकी रूहें वो कायनात का निजाम चला रही हैं। अब कोई जो रूह है वो औलाद देती है, कोई रूह जो है वो रिज्क देती है, कोई रूह जो है वो जनाब बारिश बरसाती है, कोई रूह जो है वो इस कायनात को संभाल के रखती है, कोई रूह जो है वो जनाब दरियाओं को रवां करती है, कोई रूह जो है वो फसलें उगाती है। तो जिस जिस रूह के बारे में उन्होंने ये अकीदा बनाया कि ये रूह जनाब बारिश बरसाती है, उस रूह के सामने वो सर टेकते हैं और कहते हैं कि हुजूर बारिश अता फरमाओ। ये हिंदुओं की बात बता रहा हूं। जिस रूह के बारे में उनका ख्याल है कि ये औलाद देता है, उसके दरबार पे, उसके मंदिर पे, उसकी इबादतगाह पे जाते हैं और वहां पे वो नारियल या जो उन्होंने खिदमत पेश करनी होती है वो जाके करते हैं और कहते हैं कि हमारा हकीम नजराना कबूल फरमाए और हमें औलाद अता फरमाए। अच्छा, औलाद हिंदुआं भी होंदी है कि नहीं होंदी? उन्होंने बड़ा पक्का अकीदा भाई औलाद सन राम ने दी है या नहीं? अगर अकीदा ना हो तो फिर माने वो उसको, लेकिन औलाद देता कौन है? अल्लाह देता है, ठीक है। अगर कोई किसी गैर के दरवाजे पे भी जाए, रहीम और रहमान उसको कहते हैं कि जो उसकी तरफ कट करके, उसकी तरफ कमर फेर कर गैरुल्लाह के दरवाजे पे भी जाके मांगता है, औलाद उसको भी वही अता फरमाता है, रिज्क उसको भी वो अता फरमाता है। वो अपने रिज्क के दरवाजे किसी पे बंद नहीं करता, औलाद की नेमत किसी से रोकता नहीं है। अगरचे वो कहता है तुम मेरे मुखालिफ हो गए, मेरे बागी हो गए, लेकिन रहमान और रहीम तो मैं हूं ना, रहमान और रहीम तो वो है, ठीक है। और ये क्या हुआ कि एक की तरफ से कमर फेरेंगे तो वो जनाब यूं कर देगा,
ऐसे नहीं होता। ये एक उन्होंने लॉजिक बनाई हुई है कि ये सूरतें हैं, इनके पीछे कुछ रूहें हैं जो इस कायनात का निजाम चलाती हैं। और इसी तरह से एक तो जी बयान की कि अन्नहु लम्मा मात मिनहुम, ये बड़ी समझने की बात है, लम्मा मात मिनहुम मन हुआ कामिलुल मर्तबत इंदल्लाहि ताला। ये इमाम सादुद्दीन अकीदे के बाब में इमाम है अहले सुन्नत के, फरमाते हैं कि जिन्होंने बुत पूजा की है ना, उनमें से एक ग्रोह का ये अकीदा था कि उनमें से जब कोई ऐसा आदमी इस दुनिया से जाता जो आदमी कामिलुल मर्तबत इंदल्लाह, जो अल्लाह के नजदीक कामिलुल मर्तबा होता, यानी अल्लाह का वली होता। कौन होता? हाँ, कामिलुल मर्तबा, अल्लाह का मकबूल होता, तो क्या करते? इत्तखज़ू तिमसालन अला सूरतिही, तो वो यूं कर लेते कि अल्लाह के उस वली की सूरत, उसकी तस्वीर वो उसके दुनिया से जाने के बाद बना लेते। वअज़्ज़मू, और फिर वो उस तस्वीर की ताज़ीम करने लग जाते, और नस्लन बाद नस्लिन, नस्लन बाद नस्लिन, वो तस्वीर की ताज़ीम से बढ़ के उसकी इबादत में मगन हो जाते हैं। अगर सोशल मीडिया पे आप देखें ना, तो बहुत बड़ा एक तबका है जुहला का, और ऐसे कई दूर दराज के इलाके में लोगों ने कारोबार खोले हैं दरबारों के नाम पे। मुसलमानों में दरबारों के नाम पे, अल्लाह के वलियों के नाम पे पैसा जमा करने वाले ग्रुप ने, हमने खुद अपनी आंखों से देखी हैं वो वीडियोस, तस्वीर, कि वो जनाब बनाई है तस्वीरें और उनके सामने वो सर इस तरह से रख रहे हैं, उनके सामने इस तरह से वो सर रख रहे हैं। और किसी को हमने देखा है कि वो दरबार का मुजाविर है और दरबार शरीफ पे वो दुआ मांगता है, उसके पास कोई नजराना लेके आता है। ये मैं मुख्तलिफ तरह के कारोबार आपको बता रहा हूं। दरबार शरीफ पे कोई नजराना लेके आके कहता है कि आप हजरत से दुआ करें कि वो मेरे बेटे को जनाब फुला ऑफिसर बनवा दे। तो वो नजराना उनसे वसूल करता है और हाथ उठा के कहता है, साहिब मजार से दुआ मांगता है, जो कब्र में मदफून अल्लाह का वली है, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो उनसे दुआ मांगता है कि हजूर, ये आपका मुरीद, ये आपका गुलाम, ये आपका बंदा आपकी बारगाह में हाजिर है, आप करम फरमा दें और इसके बेटे को जनाब कलेक्टर लगवा दें। और वो मुजाविर खुद जनाब जाके याशियां करते हैं। फिर इस्लाम का ये चेहरा है, ये है इस्लाम का चेहरा जो किताबों में दफन हो गया। हजरत इमाम सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन के लिए लाजिम है कि अल्लाह की तौहीद, यानी उसके माबूद होने में भी कोई शरीक नहीं उसका, और उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं, और उसके कामों में भी उसका कोई शरीक नहीं। तो ये बात है, ये पहला नुक्ता है जो मैंने आपके सामने रखा है कि तौहीद का माना क्या है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जो चैप्टर आएगा उसमें इस बात का बयान होगा कि अल्लाह ताला लैसा बिजिस्मिन वला अर्ज़िन वला जौहरिन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ना तो जिस्म की तरह है ना अर्ज की तरह। वो मैं बात कल समझाऊंगा। ठीक है, यानी अल्लाह को किसी चीज की तरह नहीं कह सकते कि ये इस तरह है, इस तरह, इस तरह। ये सारे तौहीद के बाब में ये अकायद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन का फाहम अता फरमाए।